Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's lecture, I am going to explain the various aspect of double entry system. प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग साइकिल की कंसेप्ट और अलग अलग एग्जाम्पल्स के हेल्प से एक्सप्लेन किया था. अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप अकाउंटिंग साइकिल के वीडियो को जरूर देखिए. सो लेट अस डिस्कस what is double entry accounting. Luca Paciolio is the profounder of double entry accounting. Luca Paciolio एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने डबल एंट्री अकाउंटिंग के सिस्टम को प्रोफाउंड किया था. सो लेट अस डिस्कस द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग. डबल एंट्री अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अ सिंपल कंसेप्ट. Each party in a business transaction will receive something and give something in return. In bookkeeping terms, what is received is a debit and what is given is a credit. The T, that is debit and credit. So T word is important here. The T account is a representation of a scale or a balance. सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको दो अलग अलग इमेजेस बताई गई है, स्केल और बैलेंसेस. रिसीविंग पार्ट इज अ डेबिट एंड गिविंग पार्ट इज अ क्रेडिट. सो वन image of balance is given and one side is showing the debit and the another is showing credit. So T stand for debit and credit. The left side receive, that is debit, and the right side is the giving side, that is credit. So double entry system, each transaction is recorded with at least one debit one credit. अकाउंट्स में जब कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाता है तो उसकी टू साइड्स होती है. अगर एक साइड डेबिट है तो ऑब्वियस है कि सेकेंड साइड क्रेडिट ही होने वाला है. Therefore, total debits must equal total credits. So double entry system. In double entry system, each transaction must still be analyzed to determine which accounts are involved, whether the account increase or decrease, and how much the balance will change. जब भी डबल एंट्री सिस्टम होता है तो हमें देखना होता है कि उस अकाउंट में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या कितनी कमी हो रही है और किस तरह का चेंज हो रहा है. क्या ये चेंज बैलेंस में है या इनबैलेंस में है, ये देखना बहुत ही जरूरी है. Some businesses enter into thousands of transactions daily or even hourly. Accountants must carefully keep track of and record these transactions in a systematic manner. Accountants use a double entry accounting system in which at least two accounts are always affected by each transaction. So let us see the examples of classification of accounts. यहाँ हम अलग अलग examples अलग अलग terms से related देखेंगे. So there are some asset account. यहाँ हम कुछ asset accounts के example देखते हैं. Cash, notes receivable, accounts receivable, prepaid expenses, land, building, equipment. These are the examples of assets account. In the same manner, what are the example of liability side? So notes payable, accounts payable, accrued liabilities, that is for expenses incurred but not paid, that is outstanding expenses जो हमें फ्यूचर में पे करना होगा. लॉन्ग टर्म liabilities, for example investment in bonds. Now the another examples are owners equity accounts. So friends, these are the examples of owners equity accounts. Capital or owners interest in the business. Now what is meaning by capital? The amount which is invested by a businessman in a business is known as a capital. So capital owners equity का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. Withdrawals, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पैसे को निकालता है, दैट इज विड्रॉवल. ड्रॉइंग, revenues, that is income and expenses. So these are the examples of owner's equity account.
Now let us see the classification of accounts. Accounts को 3 parts में divide किए गए हैं. That parts are real account, personal account and nominal account. So what is the rule of real account? So the rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. अगर हमारे पास कोई असेट्स आती है, प्रॉपर्टीज आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं. अगर हमारे पास से कोई असेट्स एंड प्रॉपर्टीज जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन बोथ आर इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोई भी एग्जाम्पल हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो वो आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल है. बट इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रूपा अकाउंट, राधा अकाउंट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट. So let us discuss the rule of personal account. Debit receiver, debit the receiver and credit the giver. रिसीव करने वाले को हमेशा डेबिट किया जाता है और जो हमेशा गिव करता है, देता है, उसे हमेशा क्रेडिट करना चाहिए एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. In the same manner, what are the example of nominal accounts? So all expenses and gains and incomes are the best example of nominal account. Nominal account में expenses, losses, income और gains को classified किया जाता है, include किया जाता है. So debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का लॉस हो रहा है या वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के एक्सपेंसेस करती है तो उसे हम डेबिट करते हैं. लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को गेन हो रहे हैं, रिवेन्यूज हो रहे हैं या इनकम उसके पास आ रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सो अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स के ये गोल्डन रूल समझने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सो द डबल एंट्री सिस्टम, द सिस्टम रिकॉर्ड्स द 2-साइडेड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. सो यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिए, उसके इफेक्ट्स भी बताए. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज बॉट फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर नकदी खरीदा. तो देखिए, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, यहाँ पे हमने फर्नीचर का एग्जांपल दिया है, तो हमारे पास फर्नीचर आया लेकिन हमारे पास से कैश भी जाएंगी. तो एक तरफ तो हमारी असेट्स बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, बिकॉज फर्नीचर इज एग्जांपल ऑफ असेट. इन द सेम मैनर वी आर पेइंग कैश, हमारे पास से कैश भी जा रही है तो एक दूसरी तरफ हमारी असेट भी कम हो रही है. सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं टूक अ लोन इन कैश. हमने लोन लिया, नकदी लोन लिया. तो फ्रेंड्स, जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास कैश आती है. उसी तरह से हमें जिस पर्सन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने लोन लिया है, एक पर्टिकुलर और सर्टेन पीरियड के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें रिफंड भी करना होगा, तो वो हमारी लायबिलिटी भी है. सो हियर इंक्रीज इन एन असेट, जब हमारे पास कैश आ रहा है तो हमारी असेट बढ़ रही है एंड इसी के साथ साथ हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है. सो नोट दैट the accounting equation equality is maintained after recording each transaction. सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद ही अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो सकती है. दैट इज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी. सो लेट अस सी दिस एग्जांपल. आइए इस उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. XYZ Limited, a sole proprietorship. On November 1st, 2002, A started a sole proprietorship called XYZ Limited. The following double entries transactions show how amounts received, that is debits, always equal amounts given credit. 1 November 2002 को A नाम के एक पर्सन ने एक प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है XYZ लिमिटेड. तो आइए देखते हैं इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड का किस तरह से
इम्पैक्ट होता है. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. Amit deposits rupees 25,000 in a bank account for XYZ Limited. XYZ Limited के बैंक अकाउंट में अमित नाम के एक बंदे ने 25,000 रुपीज जमा किया. तो यहां पे देखिए अमित इज अ इन्वेस्टर, क्योंकि अमित ने अपने 25,000 रुपीज लगाए हैं. उसी तरह से XYZ Limited इज अ इन्वेस्टी. सो यहां पर रिसीव दैट इज डेबिट एंड गिव इज अ क्रेडिट. सो टू एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. कैश 25,000 रुपीज कैश, XYZ लिमिटेड के पास 25,000 रुपीज आ रहे हैं और अमित के पास से 25,000 रुपीज जा रहे हैं. तो जैसे कि हम इसकी जर्नल एंट्री देख रहे हैं, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट. In the same manner, entry number B, XYZ Limited buys land for rupees 20,000. XYZ Limited ने 20,000 रुपए की जमीन खरीदी. सो फ्रेंड्स यहां पे देखिए XYZ Limited बायर है, खरीदने वाला है, परचेसर वाला है, परचेसर है. उसी तरह से जिससे हमने लैंड परचेस की है वो लैंड ओनर है, दैट इज लैंड ओनर इज नथिंग बट अ सेलर. सो जब हमने जमीन खरीदी है तो हमारे पास जमीन आ रही है. देयरफॉर बाय लैंड अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज. हमने 20,000 रुपीज का लैंड खरीदा है तो हमारे पास से 20,000 रुपीज भी जा रहा है. दैट इज वाई लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Now this is the another example. इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएंगी. XYZ Limited buys supplies for rupees 1,350 agreeing to pay in near future. XYZ Limited ने 1,350 रुपए का उधारी में कुछ गुड्स खरीदे हैं. ओके, सो फ्यूचर में ये पे करने वाले हैं. तो सप्लायर इज नथिंग बट अ सेलर एंड XYZ Limited इज अ बायर. खरीदने वाला यहाँ पर XYZ Limited है. तो परचेसेस, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके लिए परचेस वर्ड यूज करते हैं. ओके, व्हाट कम्स, गुड्स कम, देयरफॉर परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,350 रुपीज एंड अनदर इंपैक्ट ऑन अकाउंट्स पेबल, जिससे हमने उधारी में खरीदा है. इस एग्जांपल में जिससे हमने उधारी में खरीदा है उसका नेम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने अकाउंट्स पेबल मेंशन किया है, जिस बंदे को हमें इन फ्यूचर इस अमाउंट को रिफंड करना है. सो देयरफॉर बाय परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट. इन द सेम मैनर, इन अनदर एग्जांपल, XYZ Limited earns fees of rupees 7,500 receiving cash. XYZ Limited के पास 7,500 रुपए की कैश आ रही है फीस के फॉर्म में. तो कस्टमर XYZ Limited को 7,500 रुपीज फीस के पे करता है. इट मीन्स XYZ Limited is a seller and customer is a buyer. So what is impact in journal entry? So by cash account debit 7,500 to fees on account 7,500 because XYZ Limited कंपनी के पास कैश आ रहा है. And what comes in debited and all incomes are credited. In another example, XYZ Limited paid wages rupees 2,125, rent rupees 800, commission rupees 450 and miscellaneous expenses rupees 275. So in this example, 4 kinds of expenses are given here, that is wages, rent, commission and miscellaneous expenses. So XYZ Limited यहाँ पर बायर है, खरीदने वाला है, और यहाँ अलग अलग तरह की पार्टीज के नेम दिए गए हैं, that is various supplies. So by wages, wage expenses, by rent, by commission, by miscellaneous account debited, these all are the expenses, and as per the rule of nominal account,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। जब हम अलग अलग तरह के खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नाउ दिस इज द अनदर एग्जांपल, यू विल गेट further clarity. XYZ Limited pays rupees 950 to creditors on account. XYZ Limited ने अपने क्रेडिटर के रुपीज 950 पे किए हैं। सो यहाँ पे देखिए XYZ Limited पेयर है और जिसे इसने पे किया है वो पेई है, दैट इज सप्लायर। सो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट डेबिट 950 रुपीज एंड XYZ लिमिटेड के पास से कैश गया है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिटेड एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट। व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। सो फ्रेंड्स, इन दिस एग्जांपल कैश गोज आउट 950 rupees, therefore cash account credited 950 rupees. In the same manner, this is the another example. Amit withdraws rupees 2000 in cash. अमित ने अपने बिजनेस से 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, निकाले हैं। सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस जिसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए XYZ लिमिटेड पेयर है एंड अमित पेई है। सो अमित ने अपने बिजनेस से 2000 रुपीज निकाला है, सो इट इज अ ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है और XYZ लिमिटेड के पास से 2000 रुपीज का कैश कम हो रहा है। सो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिटेड रुपीज 2000।